Good morning, class 6. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kuntinagar, Nevada. This is the fifth video lecture of the chapter Fiber to Fabric. So, in last video, we have seen about flax. So, total fabric or the natural fiber we have discussed is cotton, jute and flax. These three fabric or the cotton fiber I have discussed. Cotton is obtained from cotton plant, jute is obtained from jute plant, and flax is obtained from flax plant. So these things we have discussed. We have also discussed that what are fibers. So thin long strand that is used to make fabric is called fiber. So I have discussed what is fiber. Thin long strand that is used to make fabric is called fiber. After that, spinning. What is spinning? Process of twisting many fiber to make yarn or thread is called spinning. After that, fabric. The weaving, first yarn. Twisting of many fibers together result into a strong structure that is called yarn or thread. This yarn or thread is done weaving. What is weaving? Process of making fabric from yarn by using two yarn, means process of making fabric by using two yarn is called weaving. Then we have discussed knitting. What is knitting? Process of making fabric from yarn, means from single yarn, is called knitting. Then we get fabric, means the piece of cloth that we obtained after weaving or knitting of yarn is called fabric. Weaving is done with the help of instrument called loom. Loom is a machine that is used for weaving, is called loom. Loom is of two types: hand loom and power loom. Hand operated loom is called hand loom. Power operated use, means electricity operated use, is called power loom. Spinning is done by takli और चरखा. स्पिनिंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं उसको टकली या चरखा कहते हैं. फैब्रिक को उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद क्लॉथ मिलता है. ओके, यहां तक सब वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज लिख के बता चुके हैं. एक और बात, वाई वी वियर क्लोथ, हम लोग कपड़ा क्यों पहनते हैं. फर्स्ट पॉइंट, clothes cover our body and protect us from heat and cold. ठीक है. दूसरा, it also protect us from
It also protect us from insects. इंसेक्ट से बचाता है. The clothing sometimes decides our profession. Third point. Clothes sometimes indicate our profession. Profession. What is profession? मतलब काम. Example. डॉक्टर. डॉक्टर का कपड़ा देख के आप बता सकते हैं कि ये डॉक्टर है. या आर्मी मैन और ए सोल्जर, उसके कपड़ा को देख के आप बता सकते हैं कि ये आर्मी मैन है या सोल्जर है या पुलिस है. ठीक है, चलिए. सो दीज आर द यूजेस ऑफ क्लोथ्स. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट ओकेजन्स. शादी के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, अलग अलग समय में हम लोग अलग अलग कपड़ा पहनते हैं. स्कूल जाने के लिए आप स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं. रात में सोने के लिए आप नाइट गाउन पहनते हैं. फॉर एग्जाम्पल बंगाल में लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं. राजस्थान में कपड़ा पहनने का तरीका अलग है. फिर उसके बाद बिहार में लोग पगड़ी पहन मतलब पंजाब में लोग पगड़ी पहनते हैं. मतलब अलग अलग एरिया का अलग अलग क्लोथ है. ये मेरा कहने का मतलब है. सो वी वियर डिफरेंट क्लोथ एट डिफरेंट ओकेजन एंड एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग तरीके का कपड़ा पहनते हैं हम लोग. चलिए, इसके बाद एक और टॉपिक जो बचा हुआ है, ये तो हो गया. फिर उसके बाद हम लोग एक और बात डिस्कस किए थे. फाइबर्स जो है वो दो प्रकार के हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर दो प्रकार के हैं, प्लांट एंड एनिमल. means fibers that are obtained from plant and animal. प्लांट में एग्जांपल कॉटन, जूट, फ्लेक्स, ये सब प्लांट का एग्जांपल है. एनिमल का वूल हो गया, सिल्क हो गया. These are the example. अब इसमें क्या बताएं? A fiber that is obtained from animal. For example, wool is obtained from sheep, yak, lamba, goat. इन सब से मिलता है. जैसे कश्मीरा शॉल. कश्मीरा एक शॉल है जो बनता है एक स्पेशल टाइप के कश्मीरी गोट के ऊल से. ऊल मीन्स फ्लीस. फ्लीस मीन्स होता है बॉडी के हेयर को फ्लीस करते हैं. एनिमल जैसे शिप के बॉडी का जो वूल है, जिससे वूल मिलता है, उसको फ्लीस कहते हैं. चलिए, सिल्क हो गया, ये बात कर चुके हैं. सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर्स, जिसको केमिकल के मदद से बनाया गया उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, etc. These are the synthetic fibers. चलिए, अब थोड़ा सा कल जो बात आपको भेजे थे, कल आपको जो हम समझाए थे हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग में हम क्या कहना चाह रहे हैं? इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में जो ऑर्गेनिज्म मींस जो ह्यूमन बीइंग्स होते थे, वो उस समय तो कपड़ा था नहीं, तो हाउ दे यूज्ड टू कवर देयर बॉडी. सो एंशिएंट टाइम दे यूज्ड टू कवर देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ बार्क, फिर बिग लीव्स. ये हो गया गर्मी के मौसम में. ठंडा के मौसम में क्या करते थे? दे कवर देयर बॉडी विद एनिमल फर, एनिमल स्किन और फर. एनिमल स्किन और फर के मदद से वो उसको अपने बॉडी को ढक के रखते थे. अच्छा, उसी समय कुछ समय के बाद उन लोगों को समझ में आया कि हम बहुत चीजों को वीविंग करके फैब्रिक बना सकते हैं. मीन्स लेटर दे लर्न टू weave
वीविंग करना वो सीखे, और वो क्या किए, दे मेड बास्केट मैट, ये बास्केट और मैट बनाना वो शुरू किए। तो उनको ये चीज समझ में आया कि ये चीज वीव किया जा सकता है। ये जब समझ में आया तो फिर उसके बाद वो क्या किए, वाइन्स, वाइन्स मीन्स क्या होता है, VINES, वाइन्स, वाइन्स मीन्स होता है क्लाइंबिंग प्लांट। याद है आपको पढ़े थे जूनियर क्लास में, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। सो क्लाइंबिंग प्लांट। उसके बाद क्या था, वो एनिमल फ्लीस, फ्लीस मीन्स एनिमल फ्लीस, ये क्या है, एनिमल हेयर और थिक हेयर, इसी को एनिमल फ्लीस कहते हैं, जिसके मदद से वो क्या किए, उसको यूज करना शुरू किए, और उसके मदद से उन सबको, जैसे एनिमल फ्लीस को बहुत सारे फाइबर को आपस में जोड़ के धागा बनाए और उसको वीविंग करके कपड़ा बनाना सीख लिए वो लोग। लेटर इसके बाद क्या हुआ, दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग, मतलब वो खेती करना शुरू कर दिए, जिसमें क्या किए, इन इंडिया, मतलब इन एंशिएंट टाइम इन इंडिया दे वेयर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन फाइबर था, ऐसा हिस्ट्री में पता है, ऐसा एविडेंस मिला है कि कॉटन का ग्रोथ इंडिया में गंगा रिवर के किनारे होता था, गंगा डेल्टा में होता था। फिर उसके बाद इजिप्ट में ऐसा एविडेंस मिला है कि वो लोग कॉटन एज वेल एज लेनिन, लेनिन याद है किस फ्लेक्स से बनता, मतलब किस फाइबर से बनता था, फ्लेक्स फाइबर से हम लोग को क्या बनता था, लेनिन। तो वो सब का यूज एंशिएंट इजिप्शियन करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब तब तक वो लोग जो फैब्रिक बनाते थे उस समय तक, मतलब कॉटन का ग्रोथ इंडिया में और कॉटन और फ्लेक्स का कल्टीवेशन कहाँ होता था, इजिप्ट में, ठीक है। ये सब तो सही है। उसके बाद इस समय तक ये लोग, निडल का इन्वेंशन नहीं हुआ था, निडल का इन्वेंशन उस समय तक नहीं हुआ था। तो वो क्या करते थे, अपने बॉडी को जो भी वीविंग करने के बाद जो कपड़ा बनता था, मतलब वो क्या जानते थे, वो जानते थे फाइबर, फाइबर चाहे वो कहां से ऑब्टेन करते थे, वो कॉटन प्लांट से या कॉटन या फ्लेक्स प्लांट से फाइबर ऑब्टेन करते थे। उस फाइबर से वो यार्न बनाते थे, यार्न के मदद से वो फैब्रिक बनाते थे, और फैब्रिक को स्टिच कैसे करेंगे, तो निडल के मदद से। और निडल होता नहीं था उस समय, इन्वेंशन नहीं था निडल का। तो वो क्या करते थे, सिंपली उस बड़े कपड़े को अपने बॉडी के चारों तरफ ढकते थे, अपने बॉडी को ड्रेप करते थे, DRAPE, ड्रेप, DRAPE, ड्रेप। ड्रेप मीन्स होता है किसी लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ को अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेना, उसको ड्रेप करना कहते हैं। जैसे मान लीजिए धोती, धोती हम लोग सिलवाते नहीं है, धोती को सीधा पहनते हैं, मतलब लपेट के अपने बॉडी को ढकते हैं। साड़ी, टर्बन मतलब पगड़ी, ये सब क्या होता था, वो यूज करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए, मतलब ऐसा बता रहे हैं कि ड्रेपिंग ऐसा होता है। चलिए, उसके बाद फिर इन्वेंशन हुआ निडल का। With the invention of needle, now people knew how to stitch the cloth, and since they knew how to stitch the cloth, स्टिच कैसे कर सकते हैं क्लोथ को, ये सब वो समझ गए, तो उसके बाद वो अपने डिजायर्ड टाइप का क्लोथ बनाना स्टिच करके शुरू कर दिए। सो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग। ये इसके बारे में जो भी लिखने के लिए है वो सब आपको हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, लिखने का मटेरियल। तो
आज के वीडियो से सिर्फ आपको यहाँ पे जो लिखे थे क्लोथ के बारे में, वो छोटा सा पॉइंट है कि हम लोग क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, वो 3 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा इस वीडियो से। बाकी हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग के बारे में आपको बता चुके हैं, याद रखिएगा। वाइन्स जो है इसका मतलब होता है, एक छोटा सा ये टॉपिक टर्म हमको लगा शायद आप लोग ना समझें, तो इसके लिए हम बता दिए हैं कि वाइन्स मीन्स होता है जो क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स होते हैं ना, उसके जो वो तो बहुत हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो उसी को वीविंग करके उससे भी वो मैट या कुछ और बनाते थे। सो ये हो गया। और फ्लीस मीन्स होता है एनिमल हेयर, एनिमल के बॉडी पे जो हेयर, थिक लेयर ऑफ हेयर होता है उसको फ्लीस कहते हैं। स्पेशली फ्लीस टर्म यूज किया जाता है शिप के केस में। भेड़ है, भेड़ के बॉडी पे जो हेयर होता है उसी को फ्लीस कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। लगभग क्या सब कुछ कंप्लीट, सब कुछ बता चुके हैं। अगर फिर भी किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। ओके।